Hello and Assalamu alaikum friends. This is Aftab from Dr. Asadullah Khan English Medium School and Junior College. So I hope you are all good, healthy and fit at your homes. In this video, we are going to talk about 12th standard English subject. As you are all aware about the State Board Maharashtra, they have introduced the new syllabus from the next academic year. So there is a kind of confusion in our mind, like what it will be in the syllabus, what topics will be there, what chapters will be there, and what sections we have to study, we have to learn. So I'm going to talk about English subject for 12th standard, and specifically I'm going to talk about language study topics, which are the grammar topics and poetic devices topics, which is there for your studies from next academic year. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र ने जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है उस सिलेबस के अंदर 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज स्टडी के टॉपिक्स हैं और ग्रामर के टॉपिक्स हैं. आई विल गिव यू एन आउटलाइन एंड आइडिया वन बाय वन विद वन बाय वन टॉपिक. आई विल टेल यू that what you are going to learn in the next academic year. नेक्स्ट academic year के अंदर आप क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या चीज़ें देखेंगे, आप क्या चीज़ें सीखना है और स्टडी करना है, और एग्जाम में क्या क्या आने वाला है related to grammar and poetic devices we will see in this video. So let's move forward. Let's start with पार्ट्स ऑफ स्पीच. द फर्स्ट सेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक डिटेल टॉपिक, एक बड़ा एक लार्ज टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसके अंदर हम देखेंगे वर्ब्स, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी, मॉडल, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आपने 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. उसके बाद फिनाइट इनफिनाइट वर्ब्स, उसके बाद पार्टिसिपल्स, टेंसेस, जो कि हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है, 10th हो, 11th हो, 12th हो, एंड इवन आफ्टर दैट you will find tenses in your English syllabus, and also phrasal verbs. So phrasal verbs is the interesting part, by the way. एक interesting part है, not just for your examination but for your if you want to prepare English for a communicative purpose. अगर आप communicative purpose के लिए English को सीखना चाहते हो, English में बात करना चाहते हो, तो phrasal verbs will definitely help you to speak fluent English. So this is a good sign that the state board has introduced phrasal verbs for you people, and it is a very interesting part, by the way. You will enjoy this particular topic, phrasal verb. उसके बाद adjectives है, adverbs है, preposition है, जो basic parts of speeches हैं. उसके बाद determiners है, and articles को हमने last year भी देखा था 11th standard के अंदर, and now in this year also we are going to talk about articles. And next one, let's move to the next section, which is a sentence structure. So apart from part of speech, which is the most important part in any language, in English language, which is sentence structure. अगर कोई चीज़ उससे ज़्यादा important है तो वो sentence structure, because if you don't know how to write, how to form a sentence, then your writing in any subject in English will be useless. So in English part, in English subject, we are going to see about sentence structure, what are the types of sentences, simple, compound, complex sentences, जिसको हमने last year भी पढ़ा था, जिसके बारे में questions भी हमको आपके UTs में और semester में टर्म एग्जामिनेशंस में आए थे. उसके बाद स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, पढ़ा जाता है. उसके बाद क्वेश्चन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं वो देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, फ्रेम कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव्स कैसे बनाने हैं, चेंज द वॉइस को चेंज कैसे करना है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाना है, एंड सेंटेंस को जॉइन कैसे करना है. तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के पार्ट में आ रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका आ रहा है वोकैबुलरी एंड वर्ड बिल्डिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक है. इफ़ यू वांट टू improve your English for the communicative purpose as well as for the writing purpose, then definitely vocabulary and word building is for you, and it is a very important part for your examination also. So जैसे आपको पता है कि synonyms, antonyms, homonyms, basic parts of words are there. उसके बाद
वर्ड रजिस्टर, रूट वर्ड, प्रीफिक्स सफिक्स। तो वर्ड रजिस्टर हमने लास्ट ईयर में थोड़ा सा एक उसका एक ग्लिम्स देखा था, वी हैड जस्ट ग्लिम्सेस ऑफ वर्ड रजिस्टर, बट इन दिस नेक्स्ट एकेडमिक ईयर we will see in detail what are the word register actually, and after that root words are there, prefix suffix को हमने देखा था लास्ट ईयर भी। इजी चैप्टर है, बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जो इजी वाले टॉपिक्स है उनको कभी भी आप हल्के में मत लेना, वो आपको धोखा दे सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो इजी वाले चैप्टर्स हैं उनको हमेशा, जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम के अंदर आप इजी चैप्टर्स को, इजी टॉपिक्स को, इजी पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंग्लिश, अबाउट द ग्रामर टॉपिक्स, इसी ग्रामर टॉपिक्स को अगर आप फ्री टाइम में स्टडी करते हो, थोड़ा सा उसको ब्रशअप करते हो, तो आपको उसका फ़ायदा इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर होगा। प्रीफिक्स सफिक्स से लास्ट ईयर में हमने देखा था, इस एकेडमिक ईयर में भी हम जो है वो इसको देखने जा रहे हैं। उसके बाद आ रहा है आपका कनोटेशन, डिनोटेशन, कलोकेशन, डेरिवेटिव्स, एक नया पार्ट है कनोटेशन, डिनोटेशन, कलोकेशन एंड डेरिवेटिव्स का। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कलोकेशंस कैसे बनते हैं वर्ड्स के, कनोटेशंस कैसे बनते हैं, डिनोटेशन कैसे बनते हैं, और एक अच्छा आपको एक टेक्निक मिल जाएगी, स्किल, एक ट्रिक मिल जाएगी कि वर्ड्स को कैसे याद रखना है, उसको कैसे बिल्ड करना है, आपके वर्ड पावर को कैसे बढ़ाना है। उसके बाद कॉम्पाउंड वर्ड्स है एंड माइनर प्रोसेस ऑफ वर्ड बिल्डिंग है, वर्ड्स बनते कैसे हैं उसके बारे में है, और ब्लेंड्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं आपके वर्ड्स के अंदर, वो हम इसके अंदर इस टॉपिक में देखने वाले हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंट्रोडक्शन टू थिसॉरस। थिसॉरस जो है वो आपको हेल्प करता है एक वर्ड को अलग अलग उसके सिनोनिम्स के थ्रू और एंटोनिम्स के थ्रू आपकी वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए। हमने लास्ट ईयर अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ करके वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स एंड उसके अपोजिट वर्ड्स को जो है वो हमने ढूंढा था। इस एकेडमिक ईयर में भी हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज स्पीकिंग एबिलिटी। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर का जो स्पीकिंग एबिलिटी का सेक्शन था वो इट्स अ काइंड ऑफ अ बेसिक ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी बाय द वे, बट इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर वी आर गोइंग टू सी इट इन एडवांस। लास्ट ईयर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है, उसके बाद आपको खुद के बारे में प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपके पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। तो वो हमने देखा था लास्ट ईयर, बट इन दिस एकेडमिक ईयर वी आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंटरेस्टिंग, विच इज प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन, rhyme, rhythm and accent. So these are the topics, these are the advanced level of topic आपको आपका entire human speech mechanism study करने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही interesting part है from the perspective of language. So we will see the speaking ability section, advanced level of speaking ability we will see in the next academic year. The next is figures of speech and stylistic devices, which is related to your पोइट्री सेक्शन। तो पोइट्री के अंदर जो हमने लास्ट ईयर में अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीचेस देखे थे, वी आर गोइंग टू सी सम मोर फिगर्स ऑफ स्पीचेस एंड मोर स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स फ्रॉम द पोइट्री, फ्रॉम द पोएम्स। सो जैसे देख सकते हैं कि सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रॉफी है, हाइपरबोली, एफिज्म, एंटिथेसिस है, आयरनी है, पन, ओनोमोटोपोइया जो हमने लास्ट ईयर देखा था, एलिटरेशन हमने लास्ट ईयर भी इसको पढ़ा था, कंसोनेंस है, सिनेक्डोकी है, मेट्रोनमी, एम्बिग्यूटी है। सो बेसिकली जो है वो आपके बेसिक जो फिगर्स ऑफ स्पीच एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस है, जैसे कि मेटाफर रहे, पर्सोनिफिकेशन रहे, हाइपरबोली रहे, तो ये हमने रेगुलरली हम इसके टेस्ट में रहे, बट जो नए हैं हमारे यहाँ पे इस सेक्शन, इस एकेडमिक ईयर के अंदर जो है हम उसको और ज़्यादा तवज्जो देके इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ स्पेशल वर्ड ग्रुप, जिसके अंदर आपको फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, मैक्सिमम देयर यूसेज आएंगे। बेसिकली स्पेशल वर्ड ग्रुप्स का आपको इस्तेमाल, आपको यूज़, आपका हेल्प होगी आपके अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने में, कि वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड आउट द फ्रेजेस, फाइंड आउट द इडियम्स, फाइंड आउट द प्रोवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स वहाँ पे रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर। द लास्ट पार्ट इज फंक्शनल ग्रामर, जिसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द एरर और समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर एडिटिंग रहता है, ओमिशन और फाइंडिंग एरर्स, कॉमन ब्लंडर्स and like common errors you have to find out from the sentences. So this is exactly what has been introduced to you in the next academic year in the new syllabus of subject English 12th standard इसके अंदर। सो कुछ
पुराने वाले टॉपिक्स के साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए हैं ग्रामर और पोएटिक डिवाइसेस के अंदर। थोड़ा सा इसको और वास्ट बनाया है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ यू स्टडी इट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे कि अभी आपका लॉकडाउन का टाइम चालू है, तो अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, इफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ करते हो, तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। I will try to make a few more videos on these all topics one by one, which will help you inshallah in understanding all those topics. And also I'm going to create I have already created Google Classroom, so I will share the Google Class code in the description itself, so you can join the class code. You can join the classroom. I'm posting assignments and study material over there. You will find all those videos on Google Classroom also, so you can take a look at that too. So this is it from my end. Last but not the least, stay home, stay safe, stay healthy, and this is it for the day. This is Aftab signing off. Thank you.